BCom semester 3. Hello, guys. So, friends, as you know, in this situation of Corona pandemic, you might have to face the examination online, and in that kind of situation, only MCQs will be helpful to you, right? So, friends, let's start. Today, I am presenting you 40 MCQs of Indian financial system, which is your subject, which are going to be very helpful MCQ for your exam and the preparation as well. Irrespective of the modes of the exam, whether it is online or offline, these MCQ will definitely be helpful to you in upcoming time. So guys, let's start here. The first MCQ is no one is involved in Indian financial system. So here, what is the following is not actually, what is the following is not considered in Indian financial system. We can clearly see that money is not involved in Indian financial system. As I have the answers, you can see over here that this is just for your reference, but we will do all the MCQs with a proper understanding and the explanation, so that if the not same MCQ will be asked in the exam, but the related MCQ will be asked in the exam, that will be helpful for you to write the answer if you have heard and seen the explanation very with concentration. Now, the second MCQ is types of finance. How many types of finance market are there? So we know that there are two types of finance market. One is for long term, that is what the capital market is, and the other is for short term, that is known as financial market. So two types of market: financial market and we can say a money market and capital market. Now, three, which of the following is not a financial instrument? Financial instrument इसमें से कौन सा नहीं है? तो इक्विटी शेयर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. इक्विटी शेयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. नाउ व्हाट पीरियड इज द मनी मार्केट कॉल्ड? मनी मार्केट हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज फॉर शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म की बात होगी फिर वो कैपिटल मार्केट में होगा. उसके बाद हु रेगुलेट्स द मनी मार्केट? मनी मार्केट इज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल होते हैं, कॉमर्शियल पेपर होते हैं. और आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है. सो आरबीआई विल बी द regulatory body of the money market. Then the next MCQ is what period is the capital market called? Capital market will be always for long term. You need to remember that there are two kind of market. One is money market, other is capital market. Money market short term के लिए होता है, capital market long term के लिए होता है. उसके बाद who regulates the money market? So money market, sorry, who regulates the capital market? So money market is regulated by Reserve Bank of India, but we know it very well that capital market को कौन regulate करेगा? Capital market में क्या होता है? Shares होता है, equity share है, debenture है, preference share है. तो shares को always and always Security and Exchange Board of India जो SEBI है वो regulate करेगा. You need to remember this for the long term. Who issues treasury bill on behalf of the government? गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यू नीड टू रिमेंबर दिस आंसर आल्सो, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम. उसके बाद अगर आगे बात करें तो व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इंप्लीमेंटेड? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात किए तो फिर वो आएगा 1934. लेकिन अगर हमको एमसीक्यू पूछा है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो 95 आएगा, सॉरी वो 35 आएगा. लेकिन एक्ट की बात की जाए तो वो एक्ट जो है वो 1934 में बन गया था. उसके बाद उस एक्ट के बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में. उसके बाद आगे अगर देखें, हाउ हैज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इट इज एक्चुअली व्हेन इंस्टेड ऑफ हाउ. तो व्हेन वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो 1991 में इम्प्लीमेंट हुआ था. यू नो इट that liberalization, privatization, and globalization. There are three kind of policies implemented in 1991 by Government of India, and which has been the biggest economic reforms of the India. So the year will be 1991. उसके बाद next MCQ की बात करेंगे हम आगे. Let me pause the video. Okay, so we know that next MCQ हम देखेंगे. We were at the MCQ number, yes, 11.
So what is the year of establishment of Reserve Bank of India? I have already told you that year of establishment is 1935. 1935 में रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसका एक्ट जो है वो 1934 में बन गया। उसके बाद व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1877 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश? इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक। अब फिलहाल तो दो ही वर्किंग मोड पे है। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत पहले से, मतलब सालों पहले से ऑलरेडी वर्किंग मोड पे था, इवन इन द ब्रिटिश रूल ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ 13 MCQ, एंड now we will go to the next page. Yes, so we'll start from MCQ number 14. When did FERA come into force? Before going for the answer, we need to understand what exactly is the FERA. It is Foreign Exchange Regulatory Authority. सो व्हाट इज दैट? जो फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता था तो उस पे बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो फेरा को चेंज करके फेमा हो गया था उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो रेगुलेशन को चेंज करके मैनेजमेंट कर दिया था, और बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के वो निकाल दिए थे। लेकिन हम फिलहाल तो बात करेंगे व्हेन डिड फेरा कम इनटू फोर्स। तो आंसर होगा 1973 में जो फेरा है वो उसकी बॉडी बनी थी। उसके बाद व्हेन वाज सेबी एस्टेब्लिश? सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो यू माइट नो इट, इट इज 1992। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद विच स्टॉक मार्केट हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल? ऐसा कौन सा स्टॉक मार्केट है कि जिनके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं? तो यू शुड नो दिस। बॉम्बे स्टॉक मार्केट जो है उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक मार्केट फीचर? स्टॉक मार्केट फीचर कौन सा नहीं है? तो स्टॉक मार्केट रिकॉग्निशन तो है, मेंबरशिप भी है, बाय लॉज भी है, लेकिन मीटिंग ऑफ स्टॉक मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट का कोई फीचर नहीं है। उसके बाद आगे देखें, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक मार्केट एस्टेब्लिश? वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक मार्केट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? तो यू नीड टू रिमेंबर द सिटी, लंदन। लंदन में वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फंक्शन कौन से हैं? तो एक तो एलोकेशन ऑफ फंक्शंस डेफिनेटली है, द फंक्शन ऑफ डायरेक्टर भी, फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी भी है। तो हम बात कर लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक कैपिटल मार्केट में शेयर है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो वो आपको आप बेच के उसमें से पैसे कमा सकते हैं। मतलब यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इनटू द मनी। किसी भी चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे लिक्विडिटी। तो ऑल थ्री आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। सो वी विल सिलेक्ट द एमसीक्यू नंबर 4, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो हमें पता है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ब्रोकर्स तो होते हैं, लो कॉस्ट ऑफ डील भी होती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन ये जो इक्विपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट है वो इसका फीचर नहीं हो सकता। कैपिटल मार्केट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया हैपन? तो बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1969 में। इंडिया में टोटल 20 बैंक नेशनलाइज हुई थी और वो हुआ था 1969 में। उसके बाद नेक्स्ट एमसी की बात करने जाए तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज? एनबीएफसीज के टाइप्स कितने हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जो बैंक का क्या काम होता है कि वो बैंक कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द पीपल। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी फैमिली है, वो हम कोई भी नॉर्मल इंसान है, कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो बैंक में जाएगा, अपना अकाउंट ओपन करवाएगा और वो उसकी जो भी सेविंग है वो बैंक में डिपॉजिट करेगा। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो कभी भी किसी भी पर्सन का अकाउंट बैंक में ओपन, उनकी कंपनी में ओपन नहीं कर सकते, उनके कॉर्पोरेशन में नहीं ओपन कर सकते, लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लोन देना। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ऐसे मतलब बहुत से ऐसे फाइनेंस कंपनीज हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में होते हैं, और वो दो तरह की होती है। उसके बाद व्हेन वाज यूटीआई एस्टैब्लिश? यूटीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1964 में यूटीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद व्हेन डिड द इरिडा कम इनटू फोर्स? इरिडा का क्या मतलब हुआ? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो इंश्योरेंस की रेगुलेटिंग बॉडी है उसका नाम है इरिडा, और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वो हुआ था एग्जैक्ट द ईयर 2000।
So you need to note the answers as I have marked over here. You can get the PDF by taking screenshot of the video. Now we will move further to the next MCQ. Okay, let me select the tool of making box. Now who control the insurance companies? इंश्योरेंस कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा? तो फिलहाल अभी हमने बात की इरिडा का काम है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना. उसके बाद when was the LIC established? What is the meaning of LIC? Life Insurance Corporation. उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वो हुआ था 1956 में LIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ये भी आपको याद रखना है. हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में कितनी बैंक एस्टेब्लिश? 14 बैंक एस्टेब्लिश हुई थी. और फिलहाल करंटली 20 जितनी बैंक्स है वो नेशनलाइज है फिलहाल कंट्री में. तो ये हुए 27 MCQ. We will go on the next page. Before that, I need to clear the selected answers and we'll select the mouse. We'll go on the next page. We'll start from MCQ number 28. Okay, let me again select the tool of making box. How many functions of a commercial bank? Commercial bank के कितने फंक्शन होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं. एक उनके जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, दूसरे जो सब्सिडरी फंक्शन होते हैं. उसके बाद डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या रहेगा? एक तो एक्सपर्ट्स गाइड है म्यूचुअल फंड का क्या होता है. आप टीवी में भी ऐड देखते हो कि भाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या? तो आपके जो पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं. लेकिन हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते. हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी उनको देते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट की स्टडी करते हैं अच्छे से और फिर हमारा पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. तो डेफिनेटली इट इज एक्सपर्ट गाइड है. अगर एक्सपर्ट जो है वो इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क भी लेस रहेगा, लिक्विडिटी ऑफ कैश भी होगा. क्योंकि क्या होगा कि जो आप है वो स्टॉक को कभी भी बेच के उसके उसके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ऑल ऑफ द गिवन एमसीक्यूज आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ LIC? तो LIC कितने टाइप की है? तो 2 टाइप की LIC. उसके बाद विच शेयर्स आर मैंडेटरी टू इश्यू? कौन से शेयर ऐसे हैं जो इश्यू करने ही पड़ते हैं? तो अगर कोई भी आपने कोई भी कंपनी, आप खुद की कंपनी चला रहे हो और आपको पैसों के लिए मतलब इश्यू करने हैं, तो उससे पहले मतलब अगर आपको डिबेंचर इश्यू करने हैं, प्रेफरेंस इश्यू करने हैं, तो कोई भी ऐसा पब्लिक जो है हम क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक के लिए कोई भी मतलब आपको शेयर इश्यू करने होते हैं तो सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर तो इश्यू करने ही पड़ते हैं. अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किए हैं तो फिर आप डिबेंचर भी इश्यू नहीं कर सकते, आप प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू नहीं कर सकते, आप स्वेट इक्विटी शेयर भी इश्यू नहीं कर सकते, आप बोनस शेयर कुछ नहीं दे सकते. तो ये मैंडेटरी है कि आप सबसे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करो, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर जो है वो मैंडेटरी इश्यू करना है. उसके बाद विच शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू रिसीव कैपिटल बैंक? तो अगर कंपनी कभी भी बंद होती है, कुछ भी ऐसा होता है तो रिफॉर्म कंपनी का होता है, तो ऐसे केस में ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं जिनको पहले कैपिटल बैक लेने का राइट होता है? तो वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या है कि वो ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं. उनको सबसे मतलब लास्ट में जब सबको पैसे एक बार दे देते हैं, सब पेमेंट हो जाता है, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कैपिटल बैक लेने का राइट दिया हुआ है. उसके बाद विच शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट? ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं जिनको वोट करने का राइट है? तो वो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर होंगे क्योंकि वो कंपनी के ट्रू ओनर है. तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि हु आर कंसिडरेड द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी? तो वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है. उसके बाद विच शेयर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर में कौन से शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं? तो यू जस्ट नीड टू गो विथ द नेम गिवन. कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही ये होता है कि वो कभी भी मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं. उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीविंग शॉर्ट नोटिस मनी? शॉर्ट नोटिस मनी का क्या मतलब होता है? तो कॉल मनी जो होती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ली जाती है. और ये एमसीक्यू क्लास 12 का है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो. व्हेन वाज द कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कॉमर्शियल पेपर के ये सारे जो है ना, कॉल मनी है, नोटिस मनी है, उसके बाद कॉमर्शियल पेपर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के. तो ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. व्हेन वाज द कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कॉमर्शियल पेपर इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में. ये भी आपको याद रखना है. उसके बाद हु कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट इन अ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल कौन परचेज नहीं कर सकता? तो ट्रेजरी बिल जो है पब्लिक परचेज नहीं कर सकती. ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, पैसों की जरूरत है,
तो गवर्नमेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा कि भाई पैसों की जरूरत है तो आपको ट्रेजरी बिल इश्यू करने पड़ेंगे। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इश्यू करेगा। और वो ट्रेजरी बिल कौन परचेज कर सकता है? तो बैंक परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज कर सकते हैं। तो ये हो, लेकिन जो कोई भी कॉमन पीपल है वो ट्रेजरी बिल को परचेज नहीं कर सकता। उसके बाद 38 एमसीक्यू है वो देखेंगे। डिपॉजिट सर्टिफिकेट कैन बी एक्सक्लूडेड एटलीस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ। तो वो होगा 1 लाख, मतलब कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, जैसे कि ट्रेजरी बिल हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ। इस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इश्यू करके पैसे हम ले सकते हैं। तो वो एक 1 लाख के मल्टीपल में होगा, मतलब 1 लाख का इश्यू कर सकते हो या सीधा 2 लाख का, 3 लाख का फॉल। ऐसा आप नहीं हो सकता कि आपने 50,000 का इश्यू किया और 1.5 लाख का मतलब 1.5 लाख का इश्यू किया, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 39 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले माउस को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ये क्लियर किया जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। ओके, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट टूल। ओके, now we'll see the MCQ number 39. How many types of commercial bill are there? Commercial bill कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप्स के commercial bill होते हैं। और उसके बाद आगे देखेंगे what is called treasury bill. treasury bill को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रेजरी बिल को टी बिल बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म भी है। तो ये हुए टोटल 40 एमसीक्यूज that is going to be the very important MCQs for your exam. All the best guys, we will see in the next video. ये सिर्फ IFS का वीडियो हुआ, इसके MCQ अब टैक्सेशन के वीडियोस भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के वीडियो भी आएंगे। So I will consider all the subjects which you are studying in your BCom semester 3. Okay, bye.